on adding into the notes. The first scheme or the first ministry that we are going to pick up is Ministry of Health and Family Welfare. The first scheme is NetSoFan. Now, when I say NetSoFan, there's a reason why it has been made. It is basically a network of research and academic institutions working in the area of food and nutrition. That is why the word fan comes into being. So what you do is when NetScoFan comes in, FAN means food and nutrition, network of research and academic institutions for area of food and nutrition. This is for health and family, as you told you. There are 8 basic institutions working in biological, chemical, nutrition, labeling, food of animal origin, food of plant origin, water and beverage foods, testing, and safer and sustainable packaging. Now, the in all your packaging, there is written FSSAI has identified 8 nodal institutions. So it is basically for that would develop a ready reckoner that will have inventory for all research work, experts and institutions would carry out, facilitate research, survey and related articles. So when I say NetScoFan, the main purpose of it is basically to see when your food is coming in from, what is the origin, is it actually worth nutrition, is it providing a nutrition, or is it providing the food and nutrition that is there in various commodities. It could be from animal, it could be for plant. So it is basically about that. So the FSSAI authority would be there for it. It is also to identify research gaps in respective areas and collect and develop database on food safety issues for risk assessment, and this will be addressed by NetSoScan. So again, as I said again, they'll be asking which is the organization under FSSAI which has 8 nodal uh, departments coming up to check your food scanning and everything. So it's NetSoFan. The next one is SANS. This is a really important scheme, and it was launched by Ministry of Health and Welfare. It is basically about neutralize pneumonia successfully. So in general, if the question of paper is coming and your paper is coming, it would be for which is the scheme for neutralizing pneumonia. It is SANS, or they will ask you what is SANS for. As you know, in pneumonia, it becomes very difficult for a child to breathe. So that's how the word SANS is there. So when I say SANS, it would be for neutralizing pneumonia. That is the other way they can ask you this question. Well, let's talk about it. Why is this scheme come? Because we see that child mortality due to pneumonia, which is around 50% of the deaths in children in the age of 5 annually. अगर 100 मरते हैं तो 15% बच्चे pneumonia की वजह से मरते हैं. It is to mobilize people to protect children from pneumonia and to train and health people. अब very interestingly जो pneumonia का है, it's also related to something that हमारा COVID में लगता है, pulse oximeter, device to monitor oxygen saturation. तो जो ये meters थे पहले सांस के अंदर already आ चुके थे. Continuing further, a child suffering from pneumonia will be treated with a preferential dose of antibiotic amoxicillin by accredited ASHA health worker. Amoxicillin से आप treat करोगे और oximeter is something that you have been providing for the child. तो उसके oxygen levels ना कम हो जाएं. A mass awareness campaign will be launched for reducing pneumonia, and effective solution of pneumonia reduction क्या है? Breastfeeding, age appropriation, complementary feeding and immunization. तो ये सब चीज आती है सांस के अंदर. As I said, when you hear the word सांस, remember it is about pneumonia, about children generally at the age below 5. Amoxicillin आपका main medicine कौन सी दी जा रही है? First चीज. सेकंड, कितने परसेंटेज बच्चे मरते हैं, दैट इज हाउ. अगर इन्होंने डिफिकल्ट करना पड़ेगा तो ये कर देंगे सांस के अंदर क्या क्या आता है. एंड इसका फुल फॉर्म, एज यू नो, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली. सो इट्स समथिंग वेरी बिग विच इज हैपनिंग. एंड बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीजन, अगर बच्चे को ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो ट्रीट अप हो जाता है. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुमन. I'm really sorry, my Hindi is not so good as such, but so I'll try speaking the way I can. Surakshit Matritya Ashwasan. Ashwasan is basically you're telling somebody that yes, it's going to be all good. So it comes under Suman. It's again a union government scheme. It is to provide healthcare to cost to pregnant women. Now, when I say Matritva, it generally means pregnant. So it is where Surakshit means protection. मातृत्व आश्वासन. तो सुमन किसके लिए है? आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन. अब इस स्कीम में क्या क्या है?
provide dignified and quality healthcare at no cost for every woman and newborn visiting a public health facility. तो पब्लिक हेल्थ के लिए है, ना कि प्राइवेट के लिए है. अंडर दिस स्कीम बेनिफिशियरीज यूजिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज एंटाइटल्ड टू सेवरल फ्री सर्विसेज. This includes at least 4 antenatal checkups. This also includes one checkup during the first trimester, at least one checkup during Pradhan Mantri Surakshit Matre Abhiyan, iron folic acid supplementation, tetanus, diphtheria injections. ये सब बच्चे को दिए जाएंगे जो ये वाले हैं. अब एलिजिबिलिटी क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन होना चाहिए, न्यूबॉर्न मदर्स अप टू 6 months of delivery is able to avail free several healthcare benefits. फीचर और बेनिफिट्स क्या है? जीरो एक्सपेंस, ऑफ कोर्स. सुमन किसके लिए है? As I said, matritva abhiyan, आश्वासन अभियान. So it is सुरक्षित matritva आश्वासन अभियान, उससे वर्ड बनता है. Let's get back to the previous one. सांस किसके लिए था आपका? It is for pneumonia. Children having pneumonia below the age of 5. The scheme will encourage zero expense access to identification and management of complications during the and after the pregnancy. It's basically to increase the or reduce the generally क्या होता है कि a lot of women do not get access to public health care or any healthcare facility during delivery, and it might cause their deaths or the child's death. तो उसको reduction के लिए है ये. The government will also provide free transport to pregnant women from home to health facility and drop back discharge within 48 hours. The pregnant woman will be able to avail a zero expense delivery, a C-section facility of complications of public health facilities. The scheme will ensure zero tolerance of denial to service to such patients. तो पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए है. सो एनी वुमन हु इज प्रेग्नेंट, सो शी विल कैन नॉट बी डिनाइड द राइट ऑफ a healthcare service at this time. National Nutrition Survey, again ये वेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर में आता है. अब न्यूट्रिशन सर्वे की बात करें, द रीसेंट सर्वे जो कंडक्ट करते हैं मैल न्यूट्रिशन के लिए, जो डिफरेंट डिजीजेज हैं, जैसे आपका मैल न्यूट्रिशन एंड डिटेल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज. नॉन कम्युनिकेबल कौन से डिजीजेज होते हैं? आपके हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, किडनी फंक्शंस. बिकॉज आपको अगर टेंशन है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि आप किसी से बात करते हो, और कम्युनिकेबल है. अब की फाइंडिंग क्या था? 10% of the children in the age group of 5 to 9 years and adolescents in the age group of 10 to 19 years are pre-diabetic. 10% बच्चों को डायबिटीज है. 5% of them were overweight and 5% suffered from blood pressure. So basically 20% of the children are having some problems. 10% are basically 10% of children in the age group of this are suffering, and your adolescents age group are suffering from pre-diabetics. So basically उनके इंसुलिन आने के आसार हैं. 5% of them are overweight and 5% suffered from blood pressure. The survey for the first time proved that coexistence of obesity and undernutrition. Obese होने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है. It also means it's undernutrition is there. 1 in 5 children in India were stunted. Stunted का मतलब है वो नोम रह रहे हैं, बौने रह रहे हैं, dwarf रह रहे हैं, which is actually very big because 20% of India is basically not gaining height. Tamil Nadu and Goa has the highest number of children who are adolescents who are obese. Now, when I say adolescents, it means 10 to 19 years. Which two states? TG. Tamil Nadu and Goa. United Nations Decade of the ये इस करके आया था न्यूट्रिशन 2016 में. यूएन जनरल असेंबली में बोला था कि हम इस 10 सालों को एज एक्शन ऑफ न्यूट्रिशन बनाएंगे. उससे हमने ये नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे निकाला. नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे ने बोला हमारे 5% जो बच्चे हैं वो क्या हैं? ओवरवेट हैं. अगर हम आगे चलें, 2016 में ये बेसिकली जो सर्वे था यूएन जनरल असेंबली ने पास किया था, एंड WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन ने इसको लिया था. अब इसके अंदर क्या है? क्रिएटिंग सस्टेनेबल रेजिलिएंट फूड सिस्टम टू हेल्दी डाइट्स, कि एक ऐसी डाइट क्रिएट करें जो सबके लिए खा सके, जो पॉसिबल रहे. प्रोवाइडिंग सोशल प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड एजुकेशन सबके लिए, कि हर किसी को पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें न्यूट्रिशनल हैं, कौन सी नहीं है. इसके तहत आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मिलेगी कि आजकल जो स्कूल कैंटीन्स है उसमें कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दिए हैं. So that is one of the things that they have done. Extra sugar. Aligning health to nutrition and providing universal coverage of essential nutrition intervention, ensuring that trade and investment policies improve nutrition. ये सब कुछ न्यूट्रिशन के ऊपर होएगा. अब हम आते हैं सबसे बड़ी जिस पे क्वेश्चन आया भी था, आयुष्मान भारत. 1 साल हो चुका है आयुष्मान भारत को. अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर को इसमें ऐड किया गया. अगर हम बात करें
ये बेसिकली इसके लिए एक यूनिट 1 साल के बाद एक इवेंट हुआ था जिसको बोला था आरोग्य मंथन। इट इज फॉर कंप्लीशन ऑफ आयुष्मान भारत अंडर 1 ईयर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर है तहत। इसका पर्पस क्या था, इसका क्या था, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर, उन सारों को बुलाना था, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उसको आगे कैसे लेके जा सकते हैं। अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें, ये लॉन्च हुआ था 2017 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी इन एनी केस यू डो नॉट गेट, यू शुड हैव बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू यू। नाउ इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका अंडरलाइनिंग कमिटमेंट था, किसी को छोड़ना नहीं है, लीव नो वन बिहाइंड। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत बोलते हैं, इट वॉज कॉल्ड द गेम चेंजर फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इंडिया। अब इसके लिए अगर मैं आपको बात करूं, 2019 में क्वेश्चन आया था, इसमें कौन सी लेवल में आपका हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल है, प्राइमरी लेवल में है, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल, तीनों लेवल्स में आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी है। इसके स्कीम्स कौन सी स्पॉन्सर कर रही है, एक तो सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इसको स्पॉन्सर कर रही है, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसको स्पॉन्सर कर रही है। तो 2 स्कीम स्पॉन्सर कर रही हैं और ये तीनों लेवल पे अवेलेबल है। अगेन मैं पूछूं सांस किसके लिए है, सुमन किसके लिए, आपको होपफुली याद होना चाहिए व्हाट इज सांस फॉर एंड व्हाट इज सुमन फॉर। ओके, अगर हम आगे चलते हैं, आयुष्मान भारत इट इज अ कंटिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच कंप्राइजिंग ऑफ 2 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत है। अब इसके की फीचर्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई टोल्ड यू, ये किसके लिए है, 5 lakhs फॉर प्राइमरी, फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, जिसमें आप 5 लाख रुपए खर्च सकते हो, प्राइमरी आपको फ्री मिलेगा इसमें। वैसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। इट इज फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स इन इंडिया। अब इसका मतलब क्या होता है इम्पैनल्ड का, द ones which the government has approved, only those in which you can go. It is to cover 10.74 crore people and vulnerable entitled families. Approximately 50 crore beneficiaries are eligible for this benefits. Provides cashless access to healthcare services for beneficiary at the point of service. Eligibility क्या है? No restriction on family size or gender. All pre-existing conditions, आपको कुछ भी हो को कवर होएगा. It covers up to 3 days of hospitalization and 15 days of post-hospitalization expenses such as diagnostics and medicines. 3 दिन हॉस्पिटल से आने से पहले और 15 दिन हॉस्पिटल के खत्म होने के बाद। बेनिफिट्स पूरे भारत में है, कहीं एक जगह पे नहीं है। इसके अंदर आपके 1393 प्रोसीजर्स कवर्ड है एंड इंक्लूडिंग नॉट ओनली टू ड्रग्स बट ऑल्सो टू ओटी एंड आईसीयू चार्जेस इसमें कवर्ड हो जाएंगे। पब्लिक हॉस्पिटल्स आर रीइम्बर्स्ड फ्रॉम द हेल्थ केयर सर्विसेज एट पार विद प्राइवेट हॉस्पिटल। जो पब्लिक हॉस्पिटल को उतना ही पैसा मिलता है जितना प्राइवेट हॉस्पिटल को मिलेगा, वो इसमें इंक्लूडेड है। अगेन आई से, ये कौन सी है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है ये वर्ल्ड की। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम कौन सी है, तो ये कौन सी होगी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन बैक, होपफुली अभी आपको सुमन और सांस याद है। थिंक, जब भी आप रिवाइज करोगे और जब whenever you're doing it, do it such a way that you remember everything around you. इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2.0 क्यों है, क्योंकि ये सेकंड वर्जन ऑफ द स्कीम निकली है। अब इसमें क्या है कि एक भी बच्चा जो भारत में है उसको वैक्सीनेशन उपलब्ध हो, कोई बच्चा ऐसा ना रहे जिसको वैक्सीनेशन उपलब्ध ना हो एंड हु डज नॉट गेट बेसिक वैक्सीनेशन। The government launched the intensified mission Indradhanush with the focus of covering low immunization, जिनकी जो immunity power है low है, उनको cover करने के लिए. The focus is on urban, underserved, under-reserved population and tribal areas. अब इसके key facts बात करते हैं. The health ministry क्या चाहती है कि इसके अंदर, again I said, Indradhanush is basically for urban, underserved population and especially tribal areas. और ये किसके लिए है, जिसकी इम्यूनाइजेशन लो हो। अगर मैं बात करूं, सेकेंड चीज हम बात करते हैं, हमने बात किया न्यूट्रिशन की बात की, कौन सी 2 स्टेट्स हैं जहां पे न्यूट्रिशन और ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, मैंने आपको याद कराया था, तमिलनाडु एंड गोवा। ओके बैक, अगर हम वापस इसको कवर करते हैं, IMI के थ्रू, इंद्रधनुष के थ्रू आप क्या कवर कर रहे हो, आप हर एक बच्चे को पहुंचना चाहते हो जो 2 साल से छोटा है। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन स्टिल अनकवर्ड पार्शली
covered in 271 districts, 652 blocks of Uttar Pradesh and Bihar. Indradhanush is basically for Bihar and Uttar Pradesh. इसमें 4 राउंड वैक्सीनेशन है, हर किसी को अवेलेबल होना चाहिए, विद ईच राउंड इंक्लूडिंग अ 7-day इम्यूनाइजेशन ड्राइव टू बी कंडक्टेड ईच मंथ. अब इम्यूनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मैंने आपको बताया था ऊपर भी, हमने जब न्यूट्रिशन की बात की थी, 20% ऑफ इंडिया चिल्ड्रन रिमेन स्टंटेड, उनकी ग्रोथ नहीं होती. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट 8 डिजीज अंडर मिशन एज वेल एज 8 डिजीज मिशन के अंदर होंगे, अटेनिंग 90% नेशनल इम्यूनाइजेशन अक्रॉस इंडिया. क्या क्या है? मीजल्स, टेटनस, डिप्थेरिया, वुपिंग कॉफ, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, मेनिंजाइटिस एंड पोलियोमाइलिटिस. तो ये सब डिजीजेस आपको कवर करने हैं. इन सिलेक्टेड एरिया वैक्सीन फॉर जापानीज एन्सेफेलाइटिस. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था. बेसिकली इट इज, गर्मी बहुत हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीट एंड दैट टाइम द चिल्ड्रन रिक्वायर इट, एंड होमोफ्लुएंस इन्फ्लुएंजा could also be provided. ये दो सिर्फ जो हैं वो बिहार और यूपी के लिए थे मेनली. Enhanced focus will be on the left outs, dropouts and resistant families and hard to reach areas. Basically 2 साल के बिलो के लिए है इंद्रधनुष. 8 डिजीजेस को कवर करना है, हर किसी को वैक्सीन प्रोवाइड करना है, और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को करना है. डायलिसिस प्रोग्राम. अब इसके अंदर क्या है? बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सपोर्ट के लिए बात किया जाता है, और जो जो स्टेट्स ये ऑक्यूपाई सपोर्ट कर सकती है उसके लिए. बेसिकली डायलिसिस परफॉर्म क्या होता है? एक क्लींजिंग फ्लूइड पास किया जाता है ट्यूब के थ्रू, जिसको कैथीटर बोलते हैं. बहुत छोटी सी ट्यूब होती है, उसके थ्रू पास किया जाता है. इट्स ऑल्सो यूज इन जनरली एंजियोप्लास्टी. तो जिनको बेसिक एंजियोप्लास्टी का पता है, जब हार्ट से यू पास दैट हार्ट की फोटो लेने के लिए आप करते हो, उस बेसिकली उसके लिए होता है. कैथीटर के थ्रू आप पास करते हो थ्रू द अब्डोमिनल कैविटी, जो डायलेटाइज होता है, जो उसको क्या करता है, वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालता है और वापस फेंक देता है. डायलिसिस मशीन जो बेसिकली आपको पता है. अब जो प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोग्राम है, इट वाज रूल्ड आउट इन 2016 नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर. तो फ्री डायलिसिस पुअर के लिए मिलना चाहिए. द गाइडलाइंस ऑफ प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम एनविसेज प्रोविजन ऑफ डायलिसिस सर्विसेज अंडर नेशनल हेल्थ मिशन इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के अंदर है ये. फूड सेफ्टी मित्र स्कीम, एफएमएस, एफएसएम, फूड सेफ्टी मित्र स्कीम. अगर हम बात करें, इट इज़ बेसिकली अबाउट, इसका मेन मोटो क्या था फूड सेफ्टी मित्रा का? कि आप सही खाओगे, इंडिया विल ईट राइट. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ इट. लेट मी मार्क इट ऑल्सो. सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ईट राइट इंडिया, दैट इंडिया शुड ईट राइट. अब इसमें है क्या? लेट अस सी व्हाट इज देयर इन दिस स्कीम. दिस स्कीम इज ऑल अबाउट, हम बात करते हैं स्मॉल और मीडियम स्केल फूड बिजनेसेस को. बोलते हैं कि हम जो आपके लॉज है उसके अंदर आपको कंप्लाई करना है, और आपको हाइजीन रेटिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा कि जो भारत में जो बाकी लोग हैं वो सही खाएं, और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बची रहे. दैट इज वाई दिस इज नोन एज ईट राइट इंडिया. इट इज़ ऑल्सो फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज अगर आप ठीक तरह से पैकिंग करोगे तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी. इट इज़ फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन, और बैकग्राउंड में आपको बताना पड़ता है. अब हाउ इट वर्क्स, a food safety mitra will be chosen. They'll undergo training by the FSSAI. जो आपके जो खाने के पीछे FSSAI के वो सब आता है वो है. And they'll get paid by food businesses for their services. Basically food businesses इन्हें पे करेंगे because ये जाके उनको बताएंगे. अब Eat Right movement क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. It was launched by FSSAI, that is Food Safety and Standard Authority of India, जो इंडिया में खाने को रेगुलेट करता है. The movement aims to cut down salt, sugar, and oil consumption by 30% in 3 years. What is the reason for it? As I told you, obesity is on the rise. तो ओबेसिटी को ख़त्म करने के लिए और इंडियन की हेल्थ केयर बेटर करने के लिए है. ऑफ कोर्स अगर आप ऑयल खाएंगे तो उससे भी प्रॉब्लम होता है. तो इन्होंने क्या बोला है इन कंपनीज को कि हाउ डू यू रिड्यूस इट. इट ऑल्सो इज टू इनेबल एंड एंगेज सिटीजन्स टू इम्प्रूव देयर हेल्थ बाय मेकिंग द राइट फूड चॉइसेस. तो आपके खाने के पीछे अब लिखा जाएगा कि अब क्या क्या है, एंड स्पेशली ये जितनी भी आपकी कंपनीज हैं उनको बताया जाएगा. तो ये फूड सेफ्टी मित्रा इम्पॉइंट किया जाएगा स्कीम के थ्रू. रुको, repurpose used cooking oil initiative. अब लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या होता है. नाउ अब अगर हम यूज्ड कुकिंग ऑयल की बात करें तो जब आपके
You have your all the fried food that is made from outside, वो reused cooking oil होता है. If you, a lot of doctors have said if you're making it at home it's still better, but if you have it from outside there are more chances of you find getting into a disease, या आपको कोई बीमारी लगने के chances हैं. उसका रीज़न क्या होता है, ड्यूरिंग फ्राइंग और सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल बार बार ऑल्टर कर दी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड टोटल पोलर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ऑन रिपीटेड फ्राइंग. तो उससे क्या होता है, टॉक्सिटी और बढ़ जाती है उस फूड की. इससे क्या होता है, हाइपरटेंशन, एथेरोलोसिस, अल्जाइमर. अल्जाइमर भूलने का डिजीज होता है, लिवर डिजीज. अब लिमिट क्या छोड़ा है एफसीसीआई ने, उन्होंने बोला टोटल जो पोलर कंपाउंड्स है 25% बियॉन्ड द वेजिटेबल ऑयल शैल नॉट बी यूज. उसके बाद आपको वो ऑयल फेंकना पड़ेगा. The level of total polar compounds increases every time oil is reheated. Of course, एक बार heat करेंगे, दूसरी बार करेंगे, वो बार बार होता रहेगा. The TPC accumulation in oil without food is lower than oil in frying with food. तो अगर हम फूड को, अगर टीसी, अगर हम ऑयल को कंज्यूम करेंगे फ्राइंग में, तो टीएमसी जल्दी बढ़ता जाएगा. रुको क्या है, इट वाज लॉन्च बाय एफसीसीआई, इनिशिएटिव एनेबल कलेक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल टू बायोडीजल. तो जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है इसको बायोडीजल में यूज़ किया जाएगा, जिससे जो शॉपकीपर्स हैं वो यूज़ ना करें. FCCI wants businessmen using more than 100 liters of oil for frying to maintain a stock register and ensure that UCO is handed over to only registered collecting agencies, जिससे वो इसको किस में यूज़ करें, बायोडीजल में. तो इससे आपकी हेल्थ केयर का बहुत फ़र्क पड़ जाएगा. नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट. अगर हम नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट का बात करें, द गवर्नमेंट ने इसको रिलीज़ किया था. अब इसमें क्या है, इट हैज़ लेड बिल्डिंग ब्लॉक्स. बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, नेशनल हेल्थ स्टैक्स इशू किए हैं, which aims to deploy artificial intelligence in leveraging health records. आपके health records कौन check करेगा, artificial intelligence. Keeping true to the government larger agenda, data as public health, the blueprint purpose of this is to basically generate करना data by using private enterprises. Private enterprises कैसे, private insurance company use करेंगे, hospital use करेंगे, apps use करेंगे और researchers use करेंगे. इसका main purpose क्या है, एक artificial intelligence के through एक डाटा क्रिएट कर देना. नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट इज ओके, इज इट क्लियर और नॉट. बेसिकली आपने एक डाटा क्लियर करना है. अब ये क्या करेगा, ये प्योरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट, और इसकी जो ऑटोनॉमी है वो कंप्लीटली यूनानिमस रहेगी, कोई नहीं इसको करेगा. ये जस्ट लाइक यूएडीआई जीएसटीएन वैसे बनेगी नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट. एक ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हर चीज़ को गवर्न करेगी जो आपकी हेल्थ के रिलेटेड है. लक्ष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव. व्हेन आई से लेबर रूम, लेट अस अंडरस्टैंड इसमें क्या होता है कि जब मैटरनिटी होती है तो जो कई बार क्या होता है, जहाँ पे अ चाइल्ड इज डिलीवर्ड उसका कंडीशन सही नहीं होता, तो उसके लिए इन्होंने क्या लॉन्च किया है, दे हैव लॉन्च लक्ष्य. Now, what is there in Lakshya? इसका अप्रोच क्या है? बेसिकली इट इज़ फोकस्ड ऑन योर इमीडिएट पोस्ट बर्थ पीरियड के लिए जो वो रूम्स होते हैं उसको इम्प्रूव करना. इट इज़ ऑल्सो टू रिड्यूस प्रिवेंटेबल maternal एंड न्यू बॉर्न maternal मोबिलिटी, स्टिल बर्थ्स, ये वगैरह जो बेसिकली कि एक तो हो गया कि आप अगर हम बात करें, पिछला हमने बात किया था सुमन के अंदर, आप एटलीस्ट हॉस्पिटल लेके आ रहे हो. अब लक्ष्य इज बेसिकली हॉस्पिटल में जो बर्थ हो रहे हैं उसको कैसे इम्प्रूव करना. इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू डिलीवरी इन द लेबर रूम एंड ऑपरेशन थिएटर. तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि maternal और न्यू बॉर्न मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी ड्यू टू हीमरेज, रेटिनेट, प्लेसेंटा, प्रोटर्म, इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे और माँ सुरक्षित रहे जब लेबर रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे डिलीवरी होनी है. तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये बात की गई है. तो ये कहाँ कहाँ पे है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड डेजिग्नेटेड फर्स्ट रेफरल यूनिट्स जहाँ पे पहले होता है, एंड हाई केस लोड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स विद ओवर 100 डिलीवरीज इन अ मंथ. उन सबको इम्प्रूव करने की बात की गई है, वहाँ पे कोई डेथ्स ना हो और अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए जहाँ पे डिलीवरी हो. और इसको प्रोवाइड कौन करेगा, पहले पहुँचने के लिए कौन प्रोवाइड करेगा, सुमन. So we continue this population research centers. Basically, this is a autonomous body being created by the government of India.
The purpose of creating this PRC is basically to control the population. It will be autonomous body, 3 साल के लिए रहेगा. हर एक साल इसको फंडेड कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फंड दिस. एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कहाँ कहाँ पे इसके सेंटर्स होंगे? जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे ये रहेगा. जब हम बात करते हैं इसको फंडिंग कौन करेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर फंडेड करेगा और उसकी गाइडलाइंस के अंडर रहेगा. एक और चीज़ जो है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फैमिली प्लानिंग क्या होएगा, डेमोग्राफिक रिसर्च, बायोलॉजिकल स्टडीज़ पढ़ेगा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल की हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. सो बेसिकली और बात करेगा कौन सी स्कीम्स अभी चल रही हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, कितनी इफेक्टिव हैं, कौन सी नहीं है, और उनको कैसे और इफेक्टिव बनाया जाए. सो दैट इज़ समथिंग दैट विल हेल्प.